Hello students. So we'll continue with acceleration. Okay. So दो तीन पैटर्न का ऑलरेडी कट चुका है. Now we'll cover few more patterns. अच्छा, एक पैटर्न होता है कि एक्सीलरेशन, डिसेलरेशन एंड यूनिफॉर्म मोशन का एक ही जर्नी में क्लैप करके, मानो कि पहले इट इज मूविंग ऑन एक्सीलरेशन, देन ऑन डिसेलरेशन, or moving on acceleration, then for some period uniform velocity, then deceleration. So starts from rest and comes to a rest. Normal journey जैसे होता है ना, तुम you start a car, you start the car from zero, then you accelerate, then you reach a velocity, you drive for some time that uniform velocity, then you velocity goes down and you stop the car. ओके, ऐसे कुछ सिचुएशन दिया गया है. तो एक बोल रहा है कि वन स्प्रिंटर कैन बी स्प्रिंटर और एनीथिंग, कार और एनीथिंग, एक्सीलरेट with a1 for t1 and then decelerate at a2 for t2. ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना कि द जर्नी इज स्टार्टिंग at this point, so it accelerates to a velocity v, and from this velocity it decelerates to 0. So this is t1, this is t2, here acceleration is a1, this is acceleration is a2. So here the initial velocity is 0, final velocity is v. Here the final velocity or initial velocity is v, final velocity is 0. So for the first half, v equals to u plus at इक्वेशन में क्या होगा, v equals to u equals to 0, a1 t1. ओके, एंड नेक्स्ट में v equals to u minus at, ये इक्वेशन में क्या होगा, u will be v, this v, ओके, एंड a2 t2. तो रिलेशनशिप, द क्वेश्चन इज t1 by t2 का रिलेशनशिप क्या है. तो यहां से देख लो, a1 t1 equals to a2 t2. So t1 by t2 equals to a2 by a1. Okay. Next one is a सिमिलर टाइप का एग्जांपल, बीच में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐड कर दिया गया है. Okay, what it is saying के थ्री हाफ, स्टोरी जो भी लिखा है तो उसका समरी क्या है. सो थ्री हाफ s1 s2 s3, फर्स्ट 10 सेकेंड t1, फर्स्ट 10 सेकेंड्स में it achieves a velocity of 20 meter per second, and then this is accelerated, यहाँ पे acceleration है which is not known, then it is uniform velocity, यहाँ पे a2 is 0, then यहाँ पे acceleration है and this distance is 40 meter and total distance is 640 meter. Okay,
and it starts from rest ends at rest or finally stops. Okay, this is the scenario. क्वेश्चन जो भी लिखा है दिस इज द सिनेरियो. तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? A1 का वैल्यू क्या है, A3 का वैल्यू क्या है, S2 का डिस्टेंस क्या है. सो वी कैन लिस्ट डाउन डिफरेंट वैल्यूज. A1 क्या है, A3 क्या है, S3 इज नोन, S1 कितना है, S2 कितना है. ओके, टोटल टाइम T का वैल्यू क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है. ओके, ऑल दिस कैन बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो फर्स्ट वन, A1 का वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, टाइम 10 सेकेंड. सो एक्सीलरेशन विल बी वेरी इजी. V equals to u plus at, V 20, u equals to 0, a into 10 is 2 meter per second square. Okay, तो S1 ut plus half at square, this is 0, A2 t is 10 seconds, 100. Okay, this one is 100, this one is 43, sorry, this one is 40. So S2 will be total distance 640 minus 100 minus 40 is 500. यहाँ पे T2 का वैल्यू क्या है, that also can be a question. What is T2? Okay, T2 का वैल्यू क्या है, T3 का वैल्यू क्या है. These are all part of the question, can be. Okay, now velocity is 20 meter per second. This is S2. S2 is 500. So what is time to T2? T2 is 500 divided by 20 is how much? 25 second. यहाँ पे initial velocity वही same 20 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 40. ओके, तो S3 we know, so V square equals to U square minus 2AS. V final velocity 0, U square is 20 square, 2 into A into S is 40, so A equals to 20 square, that is 400 divided by 2 into 40. कैलकुलेशन ठीक ठाक हो रहा है ना? 5 meter. So negative acceleration will be, this is A3. Okay, A3 का value this one, and then what is the value of T3? We know this is the acceleration. V equals to u minus at, V equals to 0, u is 20 meter per second square, 20 meter per second. A is 5 into T, so T equals to 4.
Okay, that is T3. So I think everything we have calculated in this scenario. Average velocity, total distance, average velocity is total distance by total time. Total distance कितना है 640 divided by T1. T1 का वैल्यू कहाँ? Oh, T1 is given 10 second, T2 25 seconds and T3 4 second. कैलकुलेट करके एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा. ठीक है. सो ये एक टाइप का होता है एक्सीलरेशन डिसेलरेशन, बीच में ये कांस्टेंट वेलोसिटी मर्ज करके. अच्छा, नेक्स्ट टाइप का आई थिंक आई हैव वन मोर सिमिलर वन. ओके, तो सिचुएशन और पिक्चर को थोड़ा दिमाग में रखो. ठीक है, हो सके तो इमीडिएटली ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लो तो उसे आसान रहेगा. एंड फॉर एवरी सेक्शन और एवरी पार्ट, जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करके 3 पार्ट कर दिया, 3 पार्ट में क्या क्या वैल्यू दिया है एंड क्या क्या वैल्यू मिसिंग है उसको लिख दो. एंड देन if the value is given between v and s, okay, velocity versus displacement, so v square वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. s एंड टाइम तुम्हें मालूम है तो s इक्वल्स टू ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर, ये लगाना पड़ेगा. v एंड टाइम का वेलोसिटी एंड टाइम का दिया है तो v इक्वल्स टू u प्लस माइनस at. ठीक है, तो एक एक सेगमेंट को ड्रॉ कर लो, वहां पे क्या क्या वैल्यू इज गिवन फाइंड आउट करो, बाकी क्या क्या मिसिंग है उसको कैलकुलेट कर लो, फिर जो जो चाहिए उसको सम अप करके एवरेज वेलोसिटी, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो भी बोले वो तुम निकल सकते हो. वंस अगेन, अ स्प्रिंटर starts from rest means at t equals to 0, u equals to 0. Sprinter starts at rest, okay, runs 3/4 of the distance at 1 meter per second square acceleration, okay, then continues at uniform velocity. वेलोसिटी के जगह स्पीड भी बोल सकते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज इट इज ए लीनियर मोशन. इन ए लीनियर मोशन speed and velocity becomes the same, displacement and distance also becomes same. Okay, then average velocity of the first half. Question is average velocity at first half, average velocity at second half, average velocity at complete sprint. ओके, तो फिर से ड्रॉ कर लो. सो इट इज सेइंग दैट द एंटायर sprint, 3/4 of the distance is at 1 meter per second square एक्सीलरेशन में गया है. एक्सीलरेशन इज ओके, एंड देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो 3/4 डिस्टेंस में, तो मान लो ये स्प्रिंटर एज्यूम कर लो. ठीक है, स्प्रिंटर इज द एंटायर स्प्रिंट इज
100 मीटर, सो 75 मीटर, तो उसके 75 मीटर के जगह तुम उसको एस एंड T/4 एज्यूम करके भी चल सकते हो. ओके, सो 75 मीटर तक उसका एक्सीलरेशन हुआ है एंड देन इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन. वहां पे डिसिलरेशन पार्ट यहाँ पे नहीं है. लास्ट में था एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, देन डिसिलरेशन. यहाँ पे ओनली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, खत्म. बट ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ में एवरेज वेलोसिटी क्या है एंड सेकेंड हाफ में एवरेज वेलोसिटी क्या है. ठीक है, तो यहां पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि दिस डिस्टेंस इट विल बी 50 मीटर. 50 मीटर, तो acceleration is given, 50 meter is given. What will be the velocity here? V square equals to u square plus 2s. After first half, what is the velocity? That is 2 into a is 1 into 50. So V1 here is root over 2 into 50, 100. Is V1 here is 10. टाइम कितना लगेगा V1 में? V1 equals to U is 0, so directly A is 1, T, so T is V1 is 10 divided by 1, 10 sec. ठीक है, तो S पता चल गया, T पता चल गया, S is given, so T1 ये पता चल गया. अभी ये पूरा जगह के this one is complete the segment for acceleration. V2 क्या है? V2 is up to 75 meters. So V square is U square to AS. That means V2 square here 0. Acceleration already we know 75. V2 will be root over 150. ये कुछ ऐसा आएगा 12.2 के करीब कुछ आएगा. ओके, नाउ what will be the time for this one? Once again, V2 equals to U plus A T2, or rather if we say this one is T1 and this one is T2, then it will be T2 plus T1, right? A total span में 75 meter. Then if we take the velocity, then time will be, if this one is T1, this one is T2 and this one is T3, the total time at this point will be T1 plus T2. So V2 we already know 12.2, acceleration is 1, T2 and T1 is 10 seconds. So T2 is 2.2 second. Okay, so T1 आ गया, T2 आ गया, अभी T3 निकलना पड़ेगा. सो यहाँ पे V2 का वेलोसिटी क्या होगा? V1 एंड V2 सेम होगा. दिस V2 विल बी सेम एज 12.2. सॉरी, V1 एंड वेलोसिटी V1 V2 सेम नहीं होगा क्योंकि दिस वन इज नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये V2 का जो वेलोसिटी है ये टोटल वेलोसिटी सेम रहेगा. ठीक है, V2 का वेलोसिटी इज 12.2. तो T3 will be
डिस्टेंस कितना है, S3 इज 25 मीटर, 25 डिवाइडेड बाई 12.2, तो ये होगा कितना 2.02 ऐसा कुछ होगा। ओके, सो T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, T3 भी आ गया। सो ईच एंड एवरी सेगमेंट में तुम्हें V1 S1 T1 A1, देन V2 S2 T2 A2, V3 S3 T3 A3, ये तीनों को निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट हाफ, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस first half V1 average, total distance 50 meter, time is 10 sec, so 5 meter per second. Average velocity of the second half, V2 average, second half means total this 50, so that means 50 meter divided by T2 plus T3, 50 by T2 is 2.2 and T3 is 2.02। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको। एंड देन कंप्लीट स्प्रिंट V average for the complete sprint 100 divided by T1 plus 2.2 plus 2.02। ओके, सो बहुत सारे ऐसे पैटर्न हो सकता है, प्रोसेस एक ही है, एक एक सेगमेंट का वैल्यू, सारे के सारे वैल्यू निकाल लो। ओके, एंड देन फाइंड आउट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। और एक एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स नहीं है, जस्ट डेरिवेशन, सम काइंड ऑफ अलजेब्रा। Like once again, a object first accelerate A1, then decelerate to, acceleration is A1, deceleration is A2, in between it achieve velocity V। okay, so टोटल डिस्टेंस का रिलेशनशिप निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इजी, V इक्वल्स टू टोटल टाइम मानो T, ओके, एंड दिस इज T1, दिस इज T2, X1 X2, okay, so V1 is equals to A1 into T1, we know V equals to A1 into T1 starting from 0 and finally stops, okay, same V equals to A2 T2, we already have seen. Now A2 equals to T minus T1, okay, तो अभी थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। T1 equals to V by A1, T minus T1 equals to V by A2, this is equation 1, this is equation 2, दोनों को सम अप कर दो, आ जाएगा T V by A1 V by A2 और V equals to 1 by A1 1 by A2। ठीक है, तो
दिस इज, अभी v का वैल्यू क्या है, ये a1 प्लस a2 a1 a2 v, so v will be t a1 a2 divided by a1 plus a2। अभी क्या बोल रहा है कि x1 प्लस x2, x1 is half a1 t1 square and x2 is half a1 t2 square. So t1 is half a1 v by a1 square, ठीक है। इट्स जस्ट लिटिल बिट ड्राई मैनिपुलेशन, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। दिस इज वंस अगेन v by a2 square v square, ठीक है। x1 और x2 को सम अप कर दो, x1 plus x2 is v square by 2 1 by a1 1 by a2। v का वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा ऑलरेडी आ गया है, v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज v square by 2 a1 by a2 divided by a1 a2, and this one is this, so t square a1 square a2 square a1 plus a2 whole square into a1 plus a2 a1 a2 कट जाएगा t square a1 a2 a1 plus a2, ठीक है। सो t यहाँ पे गिवन वैल्यू होगा, x1 x sorry a1 v and a2, this is given, this is given, this is given, and total time t, these are the given value होगा। बाकी तुमने एज्यूम किया v v गिवन वैल्यू नहीं चाहिए, a1 a2 and t, these are the given values, okay। बाकी तुम्हारा कैलकुलेशन के लिए यू हैव एज्यूम, बट वॉट एवर वैल्यूज यू हैव एज्यूम you will have to substitute those into given term, okay। the final value तुम्हारा t a1 and a2 में होना चाहिए, क्योंकि a1 a2 and t are the given terms, right। v also t a1 and a2 वही उसमें है। तो फाइनली मैनिपुलेशन के टाइम ख्याल रखना कि फाइनल तुम्हारा जो वैल्यू है दैट शुड बी इन the given terms, whatever you have introduced for your calculation, that should not be part of your final answer, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है कि टीएथ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मतलब टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट तो मालूम है, बट एट जस्ट टीएथ टाइम उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है। सो फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है। तो मानो फर्स्ट सेकंड में एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, मतलब सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना, दिस इज फर्स्ट सेकंड, दिस इज सेकंड। 3 मिनट में डिस्प्लेसमेंट अगर इतना हुआ है, दैट मीन्स
थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इतना, वैसे nth और tth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रहने देते हो इसको। टी टाइम में टोटल डिस्प्लेसमेंट एस टी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड टी माइनस वन में एस टी माइनस वन यू टी माइनस वन हाफ ए टी माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो एस टी माइनस वन टी एथ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस वन माइनस हाफ ए टी माइनस वन होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, यू टी माइनस यू टी प्लस यू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टू टी माइनस हाफ ए। ठीक है, यू टी कट जाएगा, टू टी माइनस वन। ओके, ये भी एक इक्वेशन है। इस टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं होता, सिंपल सा तुम्हें दो इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। बोल दिया जाएगा कि T1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, T1 एथ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है दिया जाएगा, T2 एथ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है दिया जाएगा। ठीक है, फिर बाकी बोलेगा कि और एक टी थर्ड टाइम में। ठीक है, क्या है, तो इजीली T1 एथ टाइम में S1 है तो एक इक्वेशन बन जाएगा, S1 इक्वल्स टू और एक इक्वेशन होगा S2 इक्वल्स टू A/2। तुम्हें S1 एंड T1 का वैल्यू मालूम है, S2 एंड T2 का वैल्यू मालूम है, तो ये दोनों इक्वेशन में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अननोन क्या क्या है, U एंड A। ओके, दो इक्वेशन दो अननोन, U एंड A का वैल्यू आ जाएगा, फिर जो भी बोले तुम्हें यू कैन इजीली कैलकुलेट। ओके, एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये एक ही पैटर्न का क्वेश्चन होता है यहाँ पे। ये बोला है कि इट ट्रेवल्स 20 मीटर इन सेकंड 32 मीटर इन फोर्थ सेकंड। पहला वाला एक एग्जांपल, हाउ मच इट विल कवर इन 10 सेकंड। ठीक है, सो वन इक्वेशन इज 20 equals to u plus a by 2 into second
this is one equation, u equals to a by 2, 2 to 4 minus 1 3. Another is 32 equals to u plus a by 2, 2 into 4 minus 1, u plus a by 2 into 7. Okay. So दोनों इक्वेशन से तुम्हें easily u and a का value you will be able to figure out. Simultaneous equation. So u is coming in as per my notes. A is coming as 6 meter per second. U is 11. This is ms minus 2, ms minus 1. ठीक है. तो क्या बोल रहा है 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. सो एस इज यू 11 हाफ ए टी स्क्वायर. ओके. 10 सेकेंड में एस व्हेन टी इक्वल्स टू 10 ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. 10th सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा. हाउ मच it will cover in 10th second or 15th second or whatever 8th second. So s at 10th second, this formula u by a by 2 2t minus 1, u we already know 11, a is 6 by 2, 2 into 10 minus 1. Okay. So it will be how much it will cover in 10th second. Then it can say that how much it will cover between, how much it will cover between say 8 second and 12 second. Okay. So very easy. 12 सेकेंड में कितना कवर करेगा. एस टी इक्वल्स टू 12 यू टी हाफ ए टी स्क्वायर. यू इज 11 into 12 plus half a is 6 into 12 स्क्वायर. कैलकुलेट करके मिल जाएगा. एस इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 8. सिमिलरली 11 into 8 plus हाफ इंटू 6 इंटू 8 स्क्वायर. कैलकुलेट करके मिल जाएगा. माइनस कर दो, इसका आंसर आ जाएगा. और अगर बोले ये कितना, हाउ मच इट विल कवर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड. ठीक है. तो वही होगा 10 सेकेंड में कितना कवर करेगा. 10 सेकेंड के आफ्टर 5 सेकेंड मतलब 15 सेकेंड में कितना कवर करेगा. दोनों का डिफरेंस जो है वही है आंसर. ठीक है. एक सिंपल सा एल्जेब्रा है. तो देखा मैंने कैसे डिफरेंट पैटर्न का एक एक एग्जांपल लेके तुम्हें दिखा रहा हूं कि ये चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. तो द मोमेंट you see the question you will find out that okay ये पैटर्न का है. तो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो the moment you start reading few sentence you already know that okay यही पैटर्न का होगा. यही पैटर्न मतलब ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. तो बोल रहा है कि एक्स वाई जेड आर द डिस्टेंस ट्रेवल. एक्स वाई जेड आर द distance traveled at pth, qth and rth second. Okay. We'll have to prove q minus r into x divided by
p minus q into z and r minus p into y equals to 0. ओके, ये सिंपल अलजेब्रा का है. सो x इक्वल्स टू u by half a to p minus 1, y equals to u half a to q minus 1, z equals to u plus half a to r minus 1. ठीक है. Then 3 equation x minus y will be half a into 2 p minus q, y minus z will be half a into 2 q minus r, z minus x will be half a into 2 r minus p. कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा. ठीक है. क्या है बोल रहा है q माइनस r इंटू एक्स कर दो. q माइनस r, so q minus r equals to q minus r into x will be y minus z divided by a into x. then क्या है p minus q into z, p minus q x minus y divided by 2z. then r minus p into y equals to z minus x divided by a into y. ठीक है. ये तीनों को सम अप करो, 0 हो जाएगा. ठीक है. तो ये एक पैटर्न है. यही पैटर्न का और एक फाइनल वन. ऑन अनदर एग्जांपल. तो बुलेट वाला एग्जांपल, कार में ब्रेक वाला एग्जांपल, देन कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन डिसेलरेशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल, देन टीएथ वैल्यू पे डिस्प्लेसमेंट उसका एग्जांपल, ये सब हम लोग कवर किए. ठीक है. बोल रहा है कि वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड after 5 second is 30 meter per second. Velocity after 10 second is 45 meter per second. तो u क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, and then okay, let's find out this. Then what can be different pattern, then we can identify. So velocity after 5 second is 30 meter per second. So 30 is u plus a into 5. After 10 second 45, that is u plus a into 10 second. So दो equation, दो unknown u and a, two unknowns, two equation, simultaneous equation for solve करके a will be 3 as per my notes. a equals to 3 and e equals to 15. ठीक है. तो बोल रहा है कि 15 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा. s इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 5. तो s will be
ut plus half at square u is 15 into 15 half 3 15 स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना। बोला है कि 15th सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, वो भी u प्लस a बाई 2 इंटू 15 माइनस 1, u का वैल्यू 15, a का वैल्यू 3/2, दिस इज 29। ओके, कैलकुलेशन कर लेना। तो ये रहा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का वो जो तीनों फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। इसका लीनियर हॉरिजॉन्टल मोशन में कुछ पैटर्न का क्वेश्चन। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आज इंक्लूड करके खत्म कर दूंगा, वो है मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, फिर से थोड़ा सा कैलकुलस। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है कि मानो एक ग्राफ, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, ये ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दिस इज y वर्सेस x एंड दिस इज द फंक्शन, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो बोल रहा है कि फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, for what value of x y is minimum, y is minimum, and find out for what value of x y is maximum। ऐसा नहीं है कि ग्राफ ऐसा ही होगा एंड देन ग्राफ विल ऑलवेज हैव सम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ऐसा नहीं है कि इफ v versus t graph, if it is like this, then it will never have any मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि t जितना बढ़ते जाएगा v का वैल्यू बढ़ते ही जाएगा। ओके, बट इट मे हैव अ मिनिमम वैल्यू। व्हेन मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देखो व्हेन इट इज मिनिमम, दैट मीन्स यहां पे इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट, it will be parallel to x-axis. Even when we draw a tangent, it will be parallel to x-axis. So that means slope का value क्या होगा, tan 0 degree मतलब 0, that means dy equals dy by dx will be 0 for both max and minimum point। देखो, so when यहाँ पे देखो y के वैल्यू इज डिक्रीजिंग व्हेन x के वैल्यू इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स dy dx at this point, all this point dy dx is negative, dy dx is negative up to this point। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक क्या है, y is increasing as x is increasing, that means up to this point delta y by delta x is नेगेटिव है ना, दैट मीन्स y का चेंज नेगेटिव है
x का चेंज पॉजिटिव है तो dy dx नेगेटिव. अप टू दिस पॉइंट to this point, delta y positive, delta x also positive. So dy dx or delta y delta x is positive. यहाँ पे once again y is decreasing, the curve is decreasing, so dy dx is negative. तो मिनिमम पॉइंट में क्या होता है, मिनिमम पॉइंट में नेगेटिव dy dx जीरो होके पॉजिटिव हो जाता है. सो एट मिनिमा dy dx पॉजिटिव से जीरो होके नेगेटिव, राइट. एंड एट मैक्सिमा dy dx सॉरी मिनिमा में उल्टा लिख दिया मैंने, मिनिमा में नेगेटिव से जीरो होके पॉजिटिव, ओके. एंड मैक्सिमा में पॉजिटिव था, पॉजिटिव से जीरो होके फिर नेगेटिव हो गया, है ना. कोई डाउट है? और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं. एक ऐसा ग्राफ लिया है जहां पे एक मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है. नॉट दैट एवरी ग्राफ हैज बोथ मैक्सिमा और मिनिमा. इट मे हैव वन ऑफ देम और इट मे हैव नॉन ऑफ देम. ओके, मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू नहीं है, वैसे भी हो सकता है. तो एज्यूम करते हैं ये ग्राफ इज समथिंग जिसपे मैक्सिमा मिनिमा बोथ पॉसिबल है. ठीक है. नाउ up to this point y is decreasing when x is increasing. That means up to this point dy dx which is delta y by delta x will be negative. y का मूवमेंट x के ऑपोजिट मूवमेंट में है. तो यहां पे आके ये जो पॉइंट है, the tangent is parallel to x axis, so dy dx एग्जैक्टली यहां पे जीरो हो जाएगा वो मिनिमम पॉइंट पे. फिर यहां पे कर्व फिर ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स y is increasing with respect to x. That means this is the positive part of dy dx. dy dx यहां पे पॉजिटिव है. फिर मैक्सिमा में जाके वो जो क्रॉस ओवर कर रहा है, that point of time once again the tangent becomes parallel to x axis. That means the dy dx is zero. So उसके बाद फिर y goes down. That means the curve is going down. That means y will be negative for change of x. So dy dx फिर से negative. So minima ऐसा point है कि dy dx नेगेटिव से जीरो होके पॉजिटिव हो जाएगा. एंड मैक्सिमा का मैक्सिमा इज वन पॉइंट जहां पे dy dx पॉजिटिव से जीरो होके नेगेटिव हो जाएगा. तो मैक्सिमा और मिनिमा का एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ का dy dx at certain point will be zero. ठीक है. Now if we draw the graph of dy dx, if we draw the graph of dy dx, इस जगह पे dy dx का ग्राफ कर रहा हूं, x के रेस्पेक्ट में dy dx का ग्राफ कर रहा हूं. तो मिनिमा पॉइंट में क्या होगा कि dy dx will be zero and immediately after that डेल्टा x के बाद ही वो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, ये डेल्टा x छोटा सा, दैट मीन्स dy dx का चेंज with respect to x at minima point. This is the minima point. Okay, minima point में डेल्टा x चेंज होगा तो dy dx का पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होगा.
तो वही पॉइंट में ये जो स्लोप हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, ये ग्राफ तो डी वाई डी एक्स का ग्राफ है, और डी वाई डी एक्स ग्राफ का स्लोप ये मिनिमा पॉइंट पे पॉजिटिव है, क्योंकि मिनिमा पॉइंट में जरा सा डेल्टा एक्स, एक छोटा सा मिनिस्क्यूल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि ग्राफ इज इंक्रीजिंग। सो स्लोप ऑफ डी वाई डी एक्स ग्राफ क्या है? डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, दैट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये डी वाई डी एक्स वर्सेस एक्स कर्व में यहां पे स्लोप हमें पॉजिटिव आ रहा है, so double differentiation of d2y dx square will be positive at minima point. Opposite is maxima point. If this is the maxima point and this is the dy dx graph with respect to x, if this is the maxima, थोड़ा सा डेल्टा x चेंज हुआ, डेल्टा x चेंज हुआ, तो मैक्सिमा का क्या है? dy dx नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा। ये ग्राफ ऐसा होगा, dy dx ग्राफ ऐसा होगा। यहाँ पे dy dx ग्राफ कुछ ऐसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे मैक्सिमा पॉइंट में देख रहा है कि dy dx ग्राफ जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इफ वी ड्रॉ अ स्लोप, ओके, सो द स्लोप वैल्यू विल बी नेगेटिव, मतलब स्लोप ऑफ dy dx which is derivative of dy dx which is double differentiation of dy dx, d2y dx square is negative. So rule is we'll have to find out a particular value of x for a given curve or given equation where dy dx equals to 0. Okay, and at the same point, for the same value of x, if d2y dx square, the double differentiation is positive, then that is the minima point. Minima point, if it is negative, that will be the maxima point. Understood? Okay. सिंपल कैलकुलस का और एक एप्लीकेशन, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा। सो ग्राफ दिया हुआ है, प्रोसेस क्या है? फाइंड आउट dy dx, dy dx कहां पे 0 है वो वैल्यू निकालो x का, फॉर द वैल्यू ऑफ x dy dx बिकम 0, x का वो वैल्यू निकालो, फिर d2y dx स्क्वायर में देखो पुट करके, if d2y dx square is positive, that means that is the minima point. If d2y dx square is negative, that means that is the maxima point. Let's start with one example. ठीक है, देखा तो कैलकुलस कैसे चीज को आसान कर देते हैं। ओके, if we differentiate and then we can easily find out whether a graph can have a maxima value or minima value or not, or if it is a common diagram like circle or parabola, from coordinate geometry se also we can find out that what can be the max value or mean value. ठीक है, तो मेरे पास एक एग्जांपल है, a is equals to 2t square minus 4t cube. Okay, find out the max minima point. Maxima, मैक्सिमा क्या है? मिनिमा, ये दोनों पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इजी, ds dt is 4t minus 12t square. So to be
the maxima or minima point ds dt has to be 0. So 4t1 minus 3t equals to 0. t का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है? 0 एंड 1/3. ठीक है. नाउ d2s dt स्क्वायर क्या है? 4 minus 24t. So d2s dt square at t equals to 0 is 4. d2s dt square at t equals to 1/3 is 4 minus 24 into 1/3, 4 minus 8 minus 4. ठीक है. तो दिस इज क्या है? दिस इज मिनिमा एंड दिस इज मैक्सिमा. ठीक है. Let's take another two example. A is equals to 2t cube 18t square plus 48t. Steps are same. ds dt equals to 6t square 36t plus 48. This needs to be 0. तो इक्वेट कर लो. t square minus 6t plus 8 t minus 4 t minus 2 equals to 0. So t का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है? t equals to 2,4. अच्छा, दो प्रोसेस है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए. d2s dt स्क्वायर t इक्वल्स टू 2 में डाल दो. अच्छा, d2s dt स्क्वायर का वैल्यू क्या है? d2s dt स्क्वायर इज 12t माइनस 36. डाल दो. 12 इंटू 2 36. ये क्या है? ये नेगेटिव आएगा. 24 minus 36 is minus 12. d2s dt square at t equals to 4 में 12 into 4 minus 36, 48 minus 36 plus 12. So this is maxima. This is मिनिमा. ठीक है. और एक सिंपल एग्जांपल भी है. सिंपल वे 2 एंड 4 के बीच में 2 एंड 4 के बीच में एक वैल्यू 3 ले लो. ठीक है. सो इफ 2 एंड 4 के बीच में 3 वैल्यू, ये ds dt को इवेल्युएट करो. ओके. सो इफ 2 में 3 में ds dt का वैल्यू इफ इट इज कमिंग एज नेगेटिव, ओके, दैट मीन्स द ग्राफ इज मूविंग लाइक दिस. इफ इट इज नेगेटिव, ओके. सो 2 एंड 4 के बीच में एक वैल्यू ले लो 3. वो 3 वैल्यू को ds dt में बिठा दो. देखो ds dt का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है. इफ इट इज नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स 2 एंड 4 के बीच में ग्राफ इज स्लाइडिंग. दैट मीन्स 2 विल बी पॉजिटिव मैक्सिमा एंड 4 विल बी मिनिमा पॉइंट. इफ रिवर्स हुआ
के 2 और 4 के बीच में 3 का वैल्यू लेके ds dt is positive. If ds dt is positive, that means 2 में वो मिनिमा हिट किया था, 4 में मैक्सिमा. ठीक है. सो both ways you can do. You can put directly that 2 and 4 का वैल्यू इन d2s dt square. यहाँ पे तो d2s dt square का ही इजी लगता है मेरे को. d2s dt square 12t है, सिंपल सा एग्जांपल है कि यहाँ पे ये नंबर थोड़ा बड़ा है, लंबा है, तो यहाँ पे 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. उससे बेहतर है एक का वैल्यू निकाल दो, एक का वैल्यू पुट करो, दूसरे का वैल्यू ऑटोमेटिकली, एक मैक्सिमा हुआ मतलब दूसरा वाला मिनिमा ही होगा. और एक सिंपल एप्लीकेशन एस इक्वल्स टू ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर. ठीक है. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगा? एस इक्वल्स टू ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर. ds dt is u plus minus 80. ओके. तो ये 0 होना है, तो t इक्वल्स टू u बाई ए. इसको पुट कर दो यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज कैलकुलस. ओके. एंड यहाँ पे ds dt t इक्वल्स टू u बाई वन सिंगल वैल्यू है. दैट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमा कौन सा है, मिनिमा कौन सा है, ये निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो एक ही पॉइंट है. ठीक है. और ये जो एप्लीकेशन है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन से पता चलेगा कि इसका मिनिमा वैल्यू कुछ नहीं है, मैक्सिमा वैल्यू ही होगा. ये हुआ कैलकुलस से. कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से कैसे करोगे? दिस इज पैराबोला कर्व. दिस इज पैराबोला. ओके. तो इसको वाइस ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये फॉर्मेट में. ठीक है. y में y एक्सिस में s एंड x एक्सिस में t. ओके. ऐसे पुट करोगे तो देखोगे इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा. ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा. तो एक्स स्क्वायर 4y नहीं है, मतलब इसको और भी जेनेरिक फॉर्मूला x माइनस ए स्क्वायर 4k y माइनस b. ठीक है. ये फॉर्मेट में लाना पड़ेगा. ओके. तो x इज t, y equals to s, and this will be y के पावर 1 है, तो दैट मीन्स s के पावर 1 है. इक्वेशन s के पावर 1 है, तो इट विल बी अलाइंड विद द एक्सिस ऑफ s, and if you manipulate this one, you will find the value will be k, the value of k will be negative, so it will be aligned to the negative direction of y axis. तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा. t जब 0 होगा तो उसका वैल्यू 0, तो ये ऐसे ओरिजिन करके ऐसे जाएगा, and you will find the value here
ए एंड बी का वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा u by a u square by 2a. In one of the class I have shown that. Okay. So from this graph, if we arrange it into the standard formula of parabola, you will find that vertex is u by a u square by 2a. So this is the maximum value s it is hitting, and then after that s is once again decreasing. Starting from 0 maximum value, then once again 0, then it's going on increasing in the negative direction. Okay, so it doesn't have any minima value, but it has one maximum value. ठीक है, so ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से भी होता है, ये कैलकुलस से भी होता है. कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से कब होगा? व्हेन वी नो द पैटर्न ऑफ द ग्राफ, बट व्हेन वी डोंट नो द पैटर्न ऑफ ग्राफ और इट इज नॉट a standard one, then it is better to use calculus. Okay, तो यही से खत्म होता है आज का लेक्चर. We have covered couple of different patterns. We'll continue with few other patterns which is related to relative velocity in linear motion. Okay, so next class I will cover relative velocity, and then I'll continue on different graphs, vt graphs or displacement versus t graph, or the distance versus t graph, और पोजीशन वेक्टर वर्सेस टी ग्राफ. ये सब फॉर डिफरेंट सिचुएशन आई विल कवर इन सब्सिक्वेंट क्लास. आज का समाचार यहीं पे खत्म. मिलते हैं लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में.